Happy Raksha Bandhan to all of you. How are you all? Hope you have increased the speed of your preparation because 3 months are only left for December examination. ये बेस ऑफ सोशियोलॉजी पार्ट 4 है. अगर पहले के वीडियोस आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे भी जाके देखिएगा. So let's start with today's topic. What were the social aspects of industrial evolution? With the increase in production, population started increasing. Rise of population led to increased rate of urbanization. The industrial cities grew rapidly. In the industrial cities, socio-economic disparities were very wide. The factory workers were involved in repetitive and boring work, the result of which they could not enjoy and get alienated. Friends, औद्योगिक क्रांति का सामाजिक पहलू ऐसा था कि फैक्ट्री के कर्मचारी दोहराव वाले और उबाऊ काम में लगे हुए थे, जिससे वे काम का आनंद नहीं ले पा रहे थे. वो अलगाव महसूस कर रहे थे, क्योंकि एक ही काम जब आप हर रोज करते हैं तो उससे हम बोर हो जाते हैं. मार्क्स ने इसी संदर्भ में एलिनेशन का कॉन्सेप्ट दिया है. इसको हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे. अभी कुछ इसका हम लोग बेसिक देख लेते हैं. मार्क्स कहते हैं हम वर्कर्स 4 प्रकार से एलिनेशन महसूस करते हैं. खुद से, अपने काम से, अपने दोस्तों से और मानवता से. फ्रेंड्स, इसका कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अभी. जैसे कोई पूरा दिन ऑफिस में टाइपिंग का काम करता है तो घर पे भी आके उनका हाथ का जो मूवमेंट होता है वो उसी तरह से होने लगता है. फ्रेंड्स, लेट्स सी फाउंडिंग फादर्स. जस्ट एज नेचुरल scientists sought to explain the mysteries of life and nature, sociologists sought to explain the complexities of social life. A science of society was founded. Saint-Simon was French aristocrat, but in his ideas he was one of the first utopian sociologists, one who believes in an ideal society where everyone gets an equal share of opportunities and resources. Friends, Saint-Simon, Auguste Comte, हर्बर्ट स्पेंसर, ये सब फाउंडिंग फादर्स माने जाते हैं. इसलिए इनका टाइमलाइन याद रखना जरूरी है. क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन थिंकर्स से. फ्रेंड्स, जैसे प्राकृतिक वैज्ञानिकों ने इसके रहस्यों को समझने की कोशिश की, समाजशास्त्रियों ने सामाजिक जीवन की जटिलताओं को समझने की कोशिश की, समाज में विज्ञान की स्थापना की गई. सेंट साइमन फ्रांसीसी विचारक थे, लेकिन अपने विचारों में वह पहले यूटोपियन समाजवादियों में से एक थे, अर्थात जो एक आदर्श समाज में विश्वास करते हैं जहां सभी को अवसरों और संसाधनों का समान हिस्सा मिलता है. नाउ वी विल सी अबाउट ऑगस्ट कॉम्ट, regarded as founding father and founder of sociology. It was he who coined the name sociology. He was a Frenchman. He became a close friend and disciple of Saint-Simon, who stimulated his interest in economics. It was French Revolution as a critical turning point in the history of human affairs. The ancient regime was gone. Society was unable to cope up with the new developments in scientific knowledge and industrialization. Friends, ऑगस्ट कॉम्ट हमारे सिलेबस में मेंशन तो नहीं है, पर इनको पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं. ऑगस्ट कॉम्ट फ्रांसीसी विचारक थे. इनको समाजशास्त्र के संस्थापक पिता के रूप में सम्मान मिला हुआ है. इन्होंने ही समाजशास्त्र नाम दिया था. वह सेंट साइमन के घनिष्ठ मित्र और शिष्य बन गए, जिससे उनकी अर्थशास्त्र में रुचि बढ़ गई. वह फ्रांसीसी क्रांति को मानवीय मामलों के इतिहास में एक धनात्मक मोड़ के रूप में दर्शाते थे. प्राचीन शासन चला गया था. समाज वैज्ञानिक ज्ञान और औद्योगिकरण में नए विकास का सामना करने में असमर्थ था. Now we will see difference between
Natural science and social science. Natural science is a branch of science that deals with the physical world, where social science is the study of human society and social relationships. Natural science includes fields such as biology, chemistry, physics, earth science, and astronomy, where social science includes fields such as economics, political science, law, geography, and history. Natural science always use scientific method, where social science use scientific methods as well as other methods. Natural science students can become medical doctors, nurses, engineers, biologists, chemists, astronomers, etc., where social science students can become lawyers, linguists, historians, writers, journalists, teachers, accountants, etc. फ्रेंड्स, प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच हम लोग डिफरेंस देखते हैं। प्राकृतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा है जो भौतिक जगत से संबंधित है। वहीं सामाजिक विज्ञान मानव समाज और सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। प्राकृतिक विज्ञान इसमें जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक, पृथ्वी विज्ञान और खगोल विज्ञान जैसे क्षेत्र शामिल है। वहीं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कानून, भूगोल और इतिहास जैसे क्षेत्र शामिल हैं। प्राकृतिक विज्ञान सदैव वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करता है, वहीं सामाजिक विज्ञान वैज्ञानिक तरीकों के साथ साथ अन्य तरीकों का भी प्रयोग करता है। प्राकृतिक विज्ञान के छात्र मेडिकल के डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर बन सकते हैं, जीव विज्ञानी, रसायनज्ञ बन सकते हैं। वहीं सामाजिक विज्ञान के छात्र वकील, भाषाविद, इतिहासकार, लेखक, पत्रकार, शिक्षक आदि बनते हैं। फ्रेंड्स, in a joint publication, Plan of the Scientific Operations Necessary for the Reorganizing of Society 1822, journal, Saint-Simon and Auguste Comte wrote about the law of three stages through which each branch of knowledge must pass. They said that the object of social physics, the positive science of society, later renamed as sociology, is discover natural and immutable law of progress. According to Auguste Comte, sociology is the abstract theoretical science of social phenomena. 1822 में समाज के पुनर्गठन के लिए आवश्यक वैज्ञानिक संचालन की एक संयुक्त प्रकाशन योजना ने सेंट साइमन और कॉम्ट ने 3 चरणों के कानून के बारे में लिखा था। फ्रेंड्स, जिसके माध्यम से ज्ञान की प्रत्येक शाखा को गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक भौतिकी का उद्देश्य समाज का सकारात्मक विज्ञान, जिसे बाद में समाजशास्त्र नाम दिया गया, प्रकृति के प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय नियम की खोज है। अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक घटना का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। Auguste Comte had initially called sociology as social physics, but later he changed it because he found that a Belgian scientist, Rolf Kotelet, had used this term to describe simple statics. According to him, society of human beings must be studied in scientific manner as a world of nature. Friends, you can also call Auguste Comte synonymously to positivism because he always used to talk about science and positivism. He was to apply the methods of inquiry used by the natural science such as observation, experimentation, and comparison. In short, OEC. He also introduced the historical method. Historical method compares societies throughout the time in which they have evolved. Friends, शुरुआती दिनों में
अगस्त कॉम्टे ने सोशियोलॉजी को सोशल फिजिक्स कहा था, पर बेल्जियम के एक वैज्ञानिक ने इसे सोशल स्टैटिक में यूज कर लिया, इसलिए उन्होंने इसका नाम चेंज करके सोशियोलॉजी रख दिया बाद में। उनके अनुसार समाज का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से किया जाना चाहिए। वे चाहते थे प्राकृतिक विज्ञान द्वारा उपयोग की जाने वाली जांच के तरीके जैसे अवलोकन, प्रयोग और तुलना सामाजिक विज्ञान में भी लागू होना चाहिए। फ्रेंड्स, वो हिस्टोरिकल मेथड यानी कि ऐतिहासिक पद्धति के बारे में भी बात करते हैं। वो बताते हैं ऐतिहासिक पद्धति पुराने समय के नए समय से तुलना करती है। Let's see a very interesting theory, law of three stages. Auguste Comte identified three basic stages and proceeded to argue that people through the maturation process, all branches of knowledge and the history of the world all pass successively through these three stages. The first one is the theological stage, second the metaphysical stage, and the third the positivistic stage. फ्रेंड्स, अगस्त कॉम्टे ने 3 बुनियादी चरणों की पहचान की जिसे विश्व का हर एक समाज होके गुजरता है। वो 3 स्टेज हैं। पहला धार्मिक चरण। धार्मिक चरण में फ्रेंड्स, जैसे पहले के लोग ज्यादातर धार्मिक हुआ करते थे, वो हर एक चीज के लिए जिम्मेदार धर्म या भगवान को मानते थे। जैसे वर्षा नहीं हो रहा है तो इंद्र देव की पूजा करते थे जिससे कि वर्षा करा दे। इसके बाद हवा के लिए वो वायु देव को पूजा करते थे, और कुछ भी होता था उनके जीवन में तो वो सारा चीज का क्रेडिट भगवान को ही देते थे। जैसे कोई बीमारी हो गया किसी को, उसके बाद महामारी आ गया शहर में या कुछ भी, तो बोलते थे भगवान नाराज हो गए हैं इसीलिए ये सब हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा चरण है तत्वमानसीय अवस्था, यानी कि इसको आप दोनों के बीच का यानी कि मिडिल अवस्था भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा रेशनल होना शुरू हो गए थे, थोड़ा सा साइंस में भी बिलीव करने लगे थे, और कोई भी चीज के लिए भगवान को जिम्मेदार न मान के वो थोड़ा सा तर्क बुद्धि भी लगाने लगे थे। और तीसरा स्टेज आया सकारात्मक अवस्था यानी कि पॉजिटिविज्म। यहाँ पे सारा चीज शास्त्रीय साइंस रेशनैलिटी को जाने लगा, यानी कि हम हर एक चीज में तर्क लगाने लगे इसके पीछे क्या लॉजिक है, और पहले के जो भी सोच था हम उससे आगे बढ़ के हर एक चीज में कुछ लॉजिक लगाते थे कि हाँ ये अगर ऐसा है तो इसके पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है। और हम इसी स्टेज में अभी भी रह रहे हैं। तो यही है अगस्त कॉम्टे का 3 स्टेज ऑफ लॉ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप अपना साथ इसी तरह बनाए रखिएगा। आशा करती हूँ आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा होगा। आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। ओके, बाय।